Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So now there are some candidates, those are making concerted efforts to reach the examination center, but lack of transportation, they are unable to reach that. Their concern of not able to reach the destination is really real. There is no fault of these candidates, but still they are suffering. But if they are misguided by certain people and they have shown the wrong path and given a wrong story that exams will postpone, now they are feeling deceived by these people. These unexperienced people has made them believe that exams will not happen, and they are so powerful tool that they can change the decision of IBPS. This is a wrong narrative on which these people are believing. The right way is give a proper advice. Proper advice is requesting the IBPS for arranging special exam for them. And the right way is they should lodge their complaint to IBPS on their portal that this is my registration number, these are my details, I am native of this place, I have to appear in such and such place. Due to non-availability of transportation, I am not able to reach. Give me opportunity to appear in this examination. And if there are large number of such requests, IBPS may consider their request. Various media channels also are covering this aspect. There is no doubt whatever IBPS has done is not appreciable. They would have released the admit card at least 1 month before. They should not have issued the notice that exams are postponed and again conducting the exam. This is right. This is a wrong approach. And I have already posted a video on that showing our anger on the behavior of IBPS. But the right approach is how to come out of this crisis. Crisis is there. We have to think with a cool mind and adopt a strategy which helps us. Instead of starting a agitation, starting a confrontationist approach against the organization will not help us. Some people are still misguiding. They run a campaign, runs this thing, run that thing. These have very limited impact on such organization. But if we make a genuine request to an organization, still we can get some a solution for our problem. There is a problem. There is a solution. We have to think on right track, right way. First you give wrong advice to people, then you stick to your wrong advice and continue to give wrong advice is not appreciable. Always we should try to find a solution of a problem. Problem is there. Now for every examination there are different set of candidates. One set of candidates, they want exam and they are appearing for the exam. Showing your gesture that they are wrong people, why they are appearing, how they will get the pleasure in getting the examination as others are not appearing. This is not a right approach. What is the fault of these people, those are appearing for examination? No fault. They have applied from their own state or they have applied from another state, made the arrangement to reach the destination. There is no fault. Yes, there are people, those are left out. And you should suggest a strategy how these people can also appear. And the right strategy is suggested by me for the last 2 days is file our complaint with IBPS portal on their website
and request them to hold a special exam for these left out candidate also. This is the right approach. Agitation is not a right approach. Confrontation is not a right approach. Request is the right approach. And that's why this channel is right advice at right time. If we simply fight, we don't get anything. But if we make request, we can get something. So we are at a receiving end. We should make a request. This is my advice. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. बहुत लोग हैं जो परसों एग्जाम में बैठ जाएंगे. बहुत लोग हैं जो ये एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, पर उनका कोई गलती नहीं है. उन्होंने एक एग्जाम भरा, आज ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, वो सेंटर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं. अब सही तरीका क्या है? अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने उनको मिसलीड किया, मिसलीड करते चले गए और ये बताते चले गए एग्जाम नहीं होगा. आज इन लोगों को उन्होंने मुसीबत में खड़ा कर दिया. इंस्टेड एक अच्छा सोल्यूशन देने के अभी भी वो गलत रास्ता उनको कन्फ्रंटेशन का सिखा रहे हैं. सही रास्ता क्या है? सही रास्ता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो सेंटर तक पहुंच जाएंगे, एग्जाम देना चाहते हैं. उनके बारे में ये कहना कि ये लोग जो एग्जाम दे रहे हैं इनको क्या मजा आएगा एग्जाम देके जब 100% कैंडिडेट नहीं बैठेंगे. उनके अंदर एक गिल्ट की फीलिंग पैदा कर रहे हैं. किस लिए? उनका क्या कसूर है जो पहुंच जाएंगे? कोई कसूर नहीं है. वो तो एक कैंडिडेट है, उनका अपने स्टेट में है या उन्होंने अरेंजमेंट कर लिया, एग्जाम में बैठ रहे हैं. हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए. उसके अलावा ऐसे कैंडिडेट है जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनका भी हमें साथ देना चाहिए. उनको हमें सही रास्ता बताना चाहिए जिससे वो भी एग्जाम में बैठ सके. कन्फ्रंटेशन से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, एजिटेशन से नहीं निकलता है, निकलता है रिक्वेस्ट करने से. मैंने अपने वीडियोस में बार रास्ता बताया है कि हमें एक रिक्वेस्ट डालनी चाहिए. हमें IBPS पोर्टल पे जाके अपनी बात रखनी चाहिए कि सर मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा ये सेंटर है, मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कृपया मुझे भी मौका दिया जाए एग्ज़ाम में बैठने का. बाद में किसी तिथि को एक एग्ज़ाम करवाया जाए. ये रास्ता है. और जब बहुत अधिक रिक्वेस्ट उनके पास पहुँचेंगी, अथॉरिटीज़ को लगेगा कि हाँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नहीं पहुँच पाए ऐसे कारणों से जिसके लिए वो दोषी नहीं है, हो सकता है IBPS एग्जाम करा दें. ये रास्ता है. ये रास्ता नहीं है कि मैं अभी भी लोगों को गलत रास्ता दिखाता रहूं, आप लड़ो, आप ये करो, आप वो. आवाज उठाना सही है, पर हम सब लोग जानते हैं इसका कोई परिणाम नहीं निकलता है. अगर हम सही दिशा में प्रयास नहीं करेंगे तो उन प्रयासों का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है. अगर इन्हीं लोगों ने हमें सही रास्ता दिखा दिया होता कि हाँ एग्ज़ाम हो सकते हैं, अगर इन्हीं लोगों ने हमें सही रास्ता बता दिया होता है कि यार आप अरेंजमेंट कर लो, हो सकता है एग्ज़ाम हो जाए, इसके लिए भी आप तैयार रहो, तो आज काफ़ी लोग इस मुसीबत में ना पड़ते. क्योंकि वो फॉल्स प्रीमिसेस के ऊपर लोगों को चलाते रहे कि देखो हम ऐसा कर रहे हैं एग्ज़ाम नहीं होगा, हम ऐसा कर रहे हैं एग्ज़ाम नहीं होगा. उससे कई लोग भ्रमित हो गए, वो बेचारे अरेंजमेंट ही नहीं कर पाए. आज भी कई लोग प्रयास कर रहे हैं आपस में ग्रुप बना के किसी तरह कार पूल करके, कोई बस पूल करके एक सेंटर पे पहुंचने की. समस्याएं आती हैं, समस्याओं का रास्ता क्या है ये पता होना चाहिए हमें. समस्याएं हम खत्म नहीं कर सकते हैं, पर समस्याओं से हम निपट सकते हैं. सही रास्ता मैंने आपको 3 दिन से सुझाया है. वो रास्ता है IBPS पोर्टल पे जाके अपनी कंप्लेंट लॉन्च करना. उसमें मुझे सलूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बात की बात है. मुझे ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए, मुझे सिस्टम पे विश्वास करना चाहिए, मुझे IBPS के पास जाके रिक्वेस्ट करनी चाहिए. जहाँ से आंसर आना है वहाँ जाएं. हमें आंसर आना है IBPS से, जा रहे हम कहीं और हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा? बिल्कुल उसमें रिजल्ट आने की संभावनाएं नहीं होती है, क्योंकि इसमें इतने अधिक लोग नहीं होंगे कि कोई ट्विटर कैंपेन SSC या रेलवेज के मुकाबले का खड़ा हो जाएगा. SSC में करोड़ों लोग हैं,
यहाँ कुछ लाख लोगों ने अप्लाई किया है, उसमें से कुछ लोग इस तरह के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते। हमें ये समझना पड़ेगा, लिमिटेशन है। ऐसे ही गलत विचारों में पड़े रहने से कुछ नहीं होता। सही दरवाजा खटकाने से आंसर निकलता है। सही दरवाजा है IBPS, उनके अधिकारियों को रिक्वेस्ट डालना। रिक्वेस्ट से बहुत चीजें हो जाती हैं, कन्फ्रंटेशन से नहीं होती हैं। जब हम कैंडिडेट हैं, हमें रिक्वेस्ट करना आना चाहिए। हर समय कन्फ्रंटेशन से कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ लोग कन्फ्रंटेशन का रास्ता दिखाते हैं, पर मेरा अपना जीवन का अनुभव ये कहता है कि कन्फ्रंटेशन के मुकाबले रिक्वेस्ट के रास्ते से हम ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।